بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول پیر کامل کی قسط نمبر 17۔ سالار چند دن گھر بیٹھا رہا تھا، مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا، اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل، حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود ہی نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا، مگر اسے موبائل آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے، یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے، اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے اسے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم کم ملنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا، اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا، اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے، رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی، مگر کر نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس تھا، سالار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچکانہ سوال مت کرو سالار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں
घर और घर वालों का कितना ख्याल है। हाउ नाइस। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, वसीम कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है ठीक ही होगा। वो ख़राब कैसे हो सकता है? उसके अंदाज़ और लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। उन्हें ये तो पता नहीं चला कि तुमने मेरी मदद की थी। सालार को इमामा का लहजा कुछ अजीब सा लगा। पता लगा? माय डियर इमामा, पुलिस उसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी जिस दिन मैं तुम्हें लाहौर छोड़ कर आया था। सालार ने कुछ इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी थी तुम्हारे अगवा के सिलसिले में। ज़रा सोचो। वो हंसा। मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकता है, और वो भी तुम्हें, जो किसी भी वक्त किसी को शूट कर सकती है। उसके लहजे में इस बार तंज था। तुम्हारे फादर ने पूरी कोशिश की है कि मैं जेल पहुंच जाऊं और बाकी की ज़िंदगी वहां गुजारूं, मगर बस मैं कुछ खुशकिस्मत वाक़या हुआ हूं कि बच गया हूं। घर से कॉलेज तक मेरी निगरानी की जाती है, डंप कॉल्स मिलती हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब तुम्हें क्या क्या बताऊं। बहरहाल तुम्हारी फैमिली हमें खासा जिज कर रही है, उसने जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम तक पहुंच जाएंगे। इस बार इमामा का लहजा माजरत ख्वाहाना था। मेरा ख्याल था कि उन्हें कभी भी किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वाकई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं पहले ख़ुद को महफूज कर लूँ, फिर ही तुम्हें फ़ोन करूँ, और अब मैं वाकई महफूज हूँ। सालार ने कुछ तजस्सुस आमेज़ दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुनी। तुम्हारा मोबाइल अब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, और मैं इसे वापस भेजना चाहती हूँ, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वो उसे बता रही थी। मैं तुम्हें कुछ पैसे भी भिजवाऊँगी, उन तमाम अखराजात के लिए जो तुमने मेरे लिए किए। सालार ने इस बार उसकी बात काटी। नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा है। तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल करती रहो। नहीं, मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, उसने कहा। कुछ देर वो खामोश रही। फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझे तलाक़ के पेपर्स भिजवा दो, और तलाक़ के पेपर्स के साथ निकाहनामे की एक कॉपी भी, जो मैं पहले तुमसे नहीं ले सकी। कहाँ भिजवाऊँ? सालार ने उसके मुतालबे के जवाब में कहा। उसके जहन में यकदम एक जमाका हुआ था। वो अगर अब तलाक़ का मुतालबा कर रही थी तो इसका मतलब यही था कि उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी, ना ही तलाक़ के उस हक़ को इस्तेमाल किया था जो निकाहनामे में वो उसकी ख्वाहिश पर उसे तफवीज़ कर चुका था। तुम उसी वकील के पास वो पेपर्स भिजवा दो जिसको तुमने हायर किया था, और मुझे उसका नाम और पता लिखवा दो। मैं वो पेपर्स उससे ले लूँगी। सालार मुस्कुराया। वो बेहद मोहतात थी। मगर मेरा तो उस वकील के साथ डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। फिर पेपर्स उस तक कैसे पहुँचाऊँ? जिस दोस्त के ज़रिए तुमने उस वकील से राब्ता किया था, उसी दोस्त के ज़रिए वो पेपर्स उस तक पहुँचा दो। ये तो तय था कि वो उसे किसी भी तरह अपना कोई अता पता ना देने का फ़ैसला कर चुकी थी, और उस पर पूरी तरह कायम थी। तुम तलाक़ क्यों लेना चाहती हो? वो इस वक्त बहुत मूड में था। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई। शायद वो उससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। तलाक़ क्यों लेना चाहती हूँ? तुम कितनी अजीब बात कर रहे हो। ये तो पहले ही तय था कि मैं तुमसे तलाक़ लूँगी, फिर इस सवाल की क्या तुक बनती है? इमामा के लहजे में हैरानी थी। वो तब की बात थी, अब तो ख़ासा लंबा वक्त गुज़र गया है, और मैं तुम्हें तलाक़ देना नहीं चाहता, सालार ने बेहद संजीदगी से कहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि दूसरी तरफ इस वक्त इमामा के पैरों के नीचे से हकीकतन ज़मीन निकल गई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ इमामा डियर, मैं तुम्हें तलाक़ देना नहीं चाहता, ना ही दूँगा। उसने एक और धमाका किया। तुम तलाक़ का हक़ पहले ही मुझे दे चुके हो, इमामा ने बेइख्तियार कहा। कब? कहाँ? किस वक्त? किस सदी में? सालार ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें याद है, मैंने निकाह से पहले तुम्हें कहा था कि निकाहनामे में तलाक़ का हक़ चाहती हूँ। अगर तुम तलाक़ नहीं भी देते तो मैं खुद ही वो हक़ इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हें ये याद होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें यह हक़ देता तो तुम ये हक़ इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई हक़ दिया ही नहीं। तुमने निकाहनामा देखा? वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, तुमने देखा ही होगा, वरना आज
तलाक की बात क्यों कर रही होती? दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा गई। सालार ने हवा में तीर चलाया था, मगर वो निशाने पर बैठा था। इमामा ने यकीनन पेपर्स साइन करते हुए उन्हें देखने की जहमत नहीं की थी। सालार बेहद महजूज हो रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत देर बाद उसने इमामा को कहते सुना। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने पिस्टल दिखाकर मुझे धोखा दिया, वो बरजुस्तगी से बोला। मैं समझता हूँ कि तुम और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों में इतनी बुराइयाँ और ख़ामियाँ हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कम्प्लीमेंट करते हैं। वो अब एक बार फिर संजीदगी से कह रहा था। ज़िंदगी सालार, ज़िंदगी और तुम्हारे साथ ये नामुमकिन है, इमामा ने तुंद लहजे में कहा। मुझे नेपोलियन की बात दोहरानी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है, या मुझे तुमसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आओ इस नामुमकिन को मिलकर मुमकिन बनाए। वो अब मजाक उड़ा रहा था। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान ये तो नामुमकिन है। सालार एक बार फिर संजीदा हो गया था। मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ सालार, तुम्हारा और मेरा लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, वरना शायद मैं तुम्हारी पेशकश पर गौर करती, मगर अब इस सूरत में ये मुमकिन नहीं है। तुम प्लीज़ मुझे तलाक दे दो, वो अब नरम लहजे में कह रही थी। सालार का दिल बेख्तियार हंसने को चाहा। तुम अगर मेरी पेशकश पर गौर करने का वादा करो तो मैं अपना लाइफस्टाइल बदल लेता हूँ, सालार ने उसी अंदाज में कहा। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी और मेरी हर चीज़ मुख्तलिफ है, ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी ही मुख्तलिफ है, हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इस बार वो झुंझलाई। नहीं नहीं, मेरी और तुम्हारी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ बहुत मिलती है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मिलती ना भी हुई तो भी ज़रा से एडजस्टमेंट के बाद मिलने लगेगी। वो इस तरह बोला जैसे अपने बेहतरीन दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हो। वैसे भी मुझ में कमी क्या है, मैं तुम्हारे पुराने मंगेतर असजद से खूबसूरत ना सही मगर जलाल अंसर जैसा मामूली शक्लो सूरत का भी नहीं हूँ। मेरी फैमिली को तुम अच्छी तरह जानती हो, कैरियर मेरा कितना ब्राइट होगा इसका तुम्हें अंदाज़ा है। मैं हर लिहाज से जलाल से बेहतर हूँ, वो अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए बोला। उसकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट नाच रही थी। वो इमामा को बुरी तरह जिज कर रहा था और वो हो रही थी। मेरे लिए कोई भी शख्स जलाल जैसा नहीं हो सकता, और तुम तो किसी सूरत भी नहीं। उसकी आवाज़ में पहली बार नुमायाँ खफगी थी। क्यों? सालार ने बेहद मासूमियत से पूछा। तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझते? देखो, तुमने अगर मुझे तलाक ना दी तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। वो अब उसे धमका रही थी। सालार उसकी बात पर बेख्तियार हंसा। यू आर मोस्ट वेलकम, जब चाहें जाएं। कोर्ट से अच्छी जगह मेल मुलाकात के लिए और कौन सी होगी? आमने सामने खड़े होकर बात करने का मज़ा ही और होगा। वो महजूज हो रहा था। वैसे तुम्हें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि कोर्ट में सिर्फ मैं नहीं पहुंचूंगा, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स भी पहुंचेंगे, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला। सालार, मेरे लिए पहले ही बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तुम इनमें इजाफ़ा ना करो। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। कम अज़ कम तुम तो मेरी मुश्किलात को ना बढ़ाओ। इस बार इमामा के लहजे में रंजीदगी और बेचारगी थी। वो कुछ और महसूस हुआ। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफ़ा कर रहा हूँ माय डियर, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में घुल रहा हूँ, तुम्हारे मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी और महफूज ज़िंदगी गुजार सकती हो। वो बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से बोला। तुम जानते हो ना, मैंने इतनी मुश्किलात किस लिए सही हैं? तुम समझते हो मैं एक ऐसे बंदे के साथ रहने पर तैयार हो जाऊंगी जो हर वो कबीरा गुनाह करता है जिससे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते हैं। नेक औरतें नेक मर्दों के लिए होती हैं और बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसा बुरा मर्द मेरी ज़िंदगी में आए। जलाल मुझे नहीं मिला, मगर मैं तुम्हारे साथ भी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। उसने बेहद तल्ख अंदाज में तमाम लिहाज बालाए ताक रखते हुए कहा। शायद इसीलिए जलाल ने भी तुमसे शादी नहीं की, क्योंकि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होती हैं, तुम्हारे जैसी नहीं।
सालार ने उसी टुकड़ा तोड़ अंदाज में जवाब दिया। दूसरी तरफ खामोशी रही। इतनी लंबी खामोशी कि सालार को उसे मुखातिब करना पड़ा। हेलो, तुम सुन रही हो? सालार, मुझे तलाक दे दो। उसे इमामा की आवाज़ भर्राई हुई लगी। सालार को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। तुम कोर्ट में जाकर ले लो, जैसे तुम मुझसे कह चुकी हो, सालार ने तुर्की ब तुर्की कहा और दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। हसन ने इन चंद माह में सालार से इमामा के बारे में जानने की बेहद कोशिश की थी, हसन के अपने बयान के मुताबिक, मगर वो नाकाम रहा था। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि सालार और इमामा के दरमियान कोई राब्ता नहीं था। सालार की तरह खुद उन्होंने मोबाइल पर बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। सिकंदर ने सालार को अमेरिका में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए कह दिया था। वो जानते थे कि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी उसे लेने में खुशी महसूस करेगी। इमामा ने सालार को दोबारा फ़ोन नहीं किया था। हालांकि सालार का ख्याल था कि वो उसे दोबारा फ़ोन करेगी और तब वो उसे बता देगा कि वो उसे निकाहनामे में पहले ही तलाक का हक़ दे चुका है और वो निकाहनामे की कॉपी भी उसके हवाले कर देगा। वो उससे ये भी कह देगा कि उसने उसके साथ सिर्फ़ एक मजाक किया था, मगर इमामा ने उससे दोबारा राब्ता कायम नहीं किया। ना ही सालार ने अपने पेपर्स में उस निकाहनामे को दोबारा देखने की जहमत की, वरना वो बहुत पहले वहाँ उसकी अदम मौजूदगी से वाकिफ़ हो जाता। जिस दिन वो आखिरी पेपर देकर वापस घर आया, सिकंदर उस्मान को उसने अपना मुंतज़िर पाया। तुम अपना सामान पैक कर लो, आज रात की फ़्लाइट से तुम अमेरिका जा रहे हो, कामरान के पास। क्यों पापा, इस तरह अचानक? सब कुछ ठीक तो है, तुम्हारे अलावा सब कुछ ठीक है, सिकंदर ने तल्खी से कहा। मगर फिर आप मुझे इस तरह अचानक क्यों भेज रहे हैं? ये मैं तुम्हें रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हुए बताऊंगा। फ़िलहाल तुम जाकर अपना सामान पैक करो। पापा प्लीज़ आप मुझे बताएं, आप इस तरह मुझे क्यों भिजवा रहे हैं? सालार ने कमज़ोर एहतजाज किया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम जाकर अपना सामान पैक करो, वरना मैं तुम्हें सामान के बगैर ही एयरपोर्ट छोड़ाऊँगा, सिकंदर ने उसे धमकाया। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। अपना सामान पैक करते हुए उलझे हुए जहन के साथ वो सिकंदर उस्मान के इस अचानक फ़ैसले के बारे में सोचता रहा और फिर अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसने अपनी दराज खोलकर अपने पेपर्स निकालने शुरू कर दिए। वहाँ निकाहनामा नहीं था। उसे उनके इस फ़ैसले की समझ आ गई थी और उसे पछतावा हुआ कि उसने निकाहनामे को इतनी लापरवाही से वहाँ क्यों रखा था। वो निकाहनामा सिकंदर उस्मान के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके अलावा कोई और इस कमरे में आने और उसकी दराज खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया। वो अब सिर्फ ये सोच रहा था कि सिकंदर उस्मान से एयरपोर्ट जाते हुए क्या बात करेगा। रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सिर्फ सिकंदर उसके साथ आए थे, तैयबा नहीं। उनका लहजा और अंदाज बेहद रूखा और खुश्क था। सालार ने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया। एयरपोर्ट जाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपना ब्रीफ केस खोलकर एक सादा कागज़ और कलम निकाला और ब्रीफ केस के ऊपर रखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दो। ये क्या है? सालार ने हैरानी से उस सादा कागज़ को देखा। तुम सिर्फ साइन करो, सवाल मत करो, उन्होंने बेहद रूखे अंदाज में कहा। सालार ने मज़ीद कुछ कहे बगैर उनके हाथ में पकड़ा हुआ कलम लेकर उस कागज़ पर साइन कर दिया। सिकंदर ने उस कागज़ को तह करके ब्रीफ केस में रखा और ब्रीफ केस को दोबारा बंद कर दिया। जो कुछ तुम कर चुके हो उसके बाद तुमसे कुछ कहना या कोई बात करना बेकार है। तुम मुझसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते रहे, ये समझते हुए कि मुझे तो कभी किसी हकीकत का पता ही नहीं चलेगा। मेरा दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें अमेरिका भेजने की बजाय हाशिम मुबीन के हवाले कर दूं, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो अपनी हमाकत का। मगर मसला ये है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हें बचाना ही है। तुम मेरी इस मजबूरी का आज तक फ़ायदा उठाते रहे हो, मगर आइंदा नहीं उठा सकोगे। मैं तुम्हारा निकाहनामा इमामा के हवाले कर दूंगा और अगर मुझे दोबारा ये पता चला कि तुमने उससे राब्ता किया है या राब्ता करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं उस बार जो करूँगा तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो, अब इनका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, समझे तुम? उन्होंने उखड़े हुए लहजे में कहा। वो जवाब में कुछ कहने की बजाय खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके अंदाज में अजीब तरह की लापरवाही
और इत्मीनान था। सिकंदर उस्मान बेख्तियार सुलगा। ये उनका वो बेटा था जो 150 प्लस का आईक्यू रखता था, और क्या कोई कह सकता था कि वो सिरे से कोई आईक्यू रखता भी था या नहीं। अगले चंद माह जो उसने अमेरिका में गुजारे थे वो उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। वो इससे पहले भी कई बार सैर व तफरीह के लिए अपनी फैमिली के साथ और उनके बगैर अमेरिका और यूरोप जाता रहा था, मगर इस बार जिस तरीके से सिकंदर ने उसे अमेरिका भिजवाया था, उसने जहाँ एक तरफ उसे मुश्तइल किया था तो दूसरी तरफ उसके लिए बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स भी पैदा कर दिए थे। उसके जो दोस्त ए लेवल के बाद अमेरिका आ गए थे वो अमेरिका की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, वो किसी एक स्टेट में नहीं थे। कुछ यही हाल उसके रिश्तेदारों और कज़न्स का था। खुद उसके अपने बहन भाई भी एक जगह पर नहीं थे। वो अपनी फैमिली से इतना अटैच नहीं था कि उनकी कमी महसूस करता हो या होम सिकनेस का शिकार होता। यह सिर्फ इस तरह अचानक वहाँ भिजवाए जाने का नतीजा था कि वो इस तरह इज़्तिराब का शिकार हो रहा था। कामरान सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता और अगर वो घर आता भी तो अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हो जाता। उसके एग्ज़ाम्स करीब थे, जबकि सालार सारा दिन या तो अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता रहता या फिर चैनल्स घुमाने में मसरूफ़ रहता, और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जाता तो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। उसने वहाँ अपने क़याम के दौरान न्यूयॉर्क में उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहाँ कामरान रह रहा था। वहाँ का कोई नाइट क्लब, डिस्को, बेप, बार, थिएटर, सिनेमा या म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जहाँ वो ना गया हो। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 लेवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ में उसने अप्लाई किया था उन तीनों में रिज़ल्ट आने से पहले ही उसकी एडमिशन की दरख्वास्तें कबूल की जा चुकी थीं। वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थीं जिनमें उसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था, और ये उसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएं जहां उसके बहन भाइयों में से नहीं तो कम अज़ कम उसके रिश्तेदारों में से कोई ज़रूर मौजूद हो, ताकि वो उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। सालार की जगह उनका कोई दूसरा बेटा लीवी लीग की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता तो सिकंदर उस्मान फ़ख्र में मुब्तला हो जाते और इस चीज़ को अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए एजाज़ समझते। मगर वो यहाँ इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि वो सालार पर नज़र कैसे रख सकेंगे। सालार ने उन यूनिवर्सिटीज़ में से येल को चुना था। उसकी वजह ये थी कि न सिर्फ येल में उसका कोई शनासा और वाकिफ़कार नहीं था, बल्कि न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिज़ल्ट आने के बाद उसे यूनिवर्सिटी से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अपने बाकी भाइयों के बरक्स उसने ज़िद करके हॉस्टल में रहने की बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सिकंदर उस्मान उसे अपार्टमेंट में रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से उसके पास इतनी रकम आ गई थी कि वो खुद ही कोई अपार्टमेंट ले लेता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर उसके अकाउंट में पहले ही एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि उनका सबसे छोटा बेटा भी स्कॉलरशिप ले रहा था, मगर सालार सिकंदर को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर उनसे हर वो काम और मुतालबा करने के लिए बनाया था जो उससे पहले किसी ने ना किया हो। वो ज़मीन पर ख़ास तौर पर उन्हें तंग करने के लिए भेजा गया था। जिस चीज़ को उनके दूसरे बच्चे मशरिक़ कहते वो उसे मगरिब कहता। जब दूसरे ज़मीन करार देते वो उसके आसमान होने पर दलाइल देना शुरू कर देता। वो उसकी बातों, हरकतों और ज़िद पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते थे और कुछ नहीं। न्यू हेवन जाने से पहले सिकंदर और तैयबा उसके लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आए थे। वो कई दिन तक उसे समझाते रहे, जिन्हें वो इत्मीनान से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा था। वो कई सालों से नसीहतें सुनने का आदी था और अमली तौर पर वो नसीहतें अब उस पर कतन कोई असर नहीं करती थीं। दूसरी तरफ सिकंदर और तैयबा वापस पाकिस्तान जाते हुए बेहद फ़िक्रमंद बल्कि किसी हद तक खौफज़दा भी थे। वो येल से फ़िनांस में MBA करने आया था और उसने वहाँ आने के चंद हफ़्तों के अंदर ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों को ज़ाहिर करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जिन अदारों में वो पढ़ता रहा था, अगरचे वो भी बहुत अच्छे थे, मगर वहाँ तालीम उसके लिए कैट वॉक थी। येल में मुकाबला बहुत मुश्किल था। वहाँ बेहद काबिल लोग और ज़हीन स्टूडेंट मौजूद थे। इसके बावजूद वो बहुत जल्द नज़रों में आने लगा था।
اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا شکار تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مروبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹس امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے ہیں۔ اس نے بچپن ہی سے بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ییل نے اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں سے کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا زوم نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے آئی کیو لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کالج فیلوز کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلی کر رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسرز سے کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ ان سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا، یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی، اور پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈز، سینما، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز۔ اس کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، ہر نیا کانسرٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔